Hello everyone, welcome to Let's Talk Live with Kamal, and this is Kamal. We will be talking about the story of Indigo as portrayed in Flamingo, English course book for grade 12 CBSE. Well, history is something that really repels students, and I would like to make this story of history simple and uncomplicated for you. Indigo is an extract that has been taken from the book titled The Life of Mahatma, written by Louis Fisher. Mahatma, as I'm sure everybody understands, is Mahatma Gandhi. So it is the life story of Mahatma Gandhi that has been written in this book. And so this extract that we are going to be talking about, Indigo, is about the life of Mahatma Gandhi. And you'll appreciate it when you realize that how connected historical events were that seem so unconnected sometimes. And big events, big issues, big situations, they arise from supposedly very small circumstances. So before we start with the story, Louis Fisher, let's talk about him for a moment. Louis Fisher was born in Philadelphia and he served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. He was a journalist by profession and had been writing for a number of European and Asian publications. So he was also the member of the faculty at Princeton University. Now, this book, The Life of Mahatma, I must tell you before we start about it, has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by the Times Educational Supplement. So, let's start with the story. Before I do that again, I would like to tell you all that it's been written in first person, and the person who is talking about over here, the narrator, is not Louis Fisher, is Mahatma Gandhi. The story is being narrated from his point of view because it's his life story which Louis Fisher has written about. So, and this can be clearly found within the first 3 lines of the story, where he says, where Louis Fisher says, when I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, he over here is Mahatma Gandhi, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. So here the story is going to be narrated in the words of Mahatma Gandhi. Before we talk about this thing, let's go a little back into history, where Gandhi is not Mahatma Gandhi. He is Mohandas Karamchand Gandhi, advocate, barrister, who has recently returned from England with his prestigious law degree and is pursuing a career as a barrister. He is sent to South Africa to pursue a case, to meet a client, and there I am sure every one of you is aware that the famous incident of Gandhi being thrown out of the railway carriage happens because he was supposedly brown-skinned, as the ruling community of the white class people, they felt themselves to be superior. And that is a time when Gandhi realizes the kind of life people, especially the brown-skinned or the black-skinned people, they are facing at the hands of the so-called white minorities. And gradually, Gandhi, when he understands this whole thing, he starts to raise his voice, as was his style, in a very soft manner, with trying to encourage people to fight for their rights, stand up for their rights, question the inequalities and the atrocities that were happening. And slowly Gandhi started to make a name for himself in South Africa.
So much so that he got his family to move to South Africa, and where he stayed for a number of years. By the time he left South Africa and came back to India, he was a very renowned figure, an activist. We can call him a rebel, a revolutionary who had started to raise his voice against the atrocities that the people were facing over there at the hands of the white minorities. So, in the year 1916, Gandhi comes back to India. That's where the story starts. In those days, there were two major political parties. That was the Muslim League and the Indian National Congress. Now, Gandhi being a very prominent figure, these political parties leaders, they wanted Gandhi to be associated with them. Both the parties were interested that he should be associated with them, because he had the power to pull people towards him. He was an orator. He had this kind of an charisma, a magnetism. So when he came back over here in 1916, December 1916, there was the annual convention of the Indian National Congress in Lucknow, and where Gandhi was invited. Though he was not a part of the Congress, but he was invited. And when he goes there, he meets a lot of people. And now this national convention is a kind of a meeting where the party delegates and everyone, they decide on the agendas of the next coming year and what they have been doing and their plan of actions. So Gandhi is there, and he says that there he meets a person, a peasant, a farmer, a poor farmer from Champaran district of Bihar. And this man's name was Rajkumar Shukla, and he has some kind of an issue which he wants to be resolved, and he wants somebody to help him out. So probably there was some kind of a problem, and he meets a lot of people, and as it is people, they don't want to listen to him, and so they keep shunting him to the other person. And as a result, what happens that finally somebody suggests that why don't you meet Gandhi? Because Gandhi was in those days, though the people in the know, the personalities, the politicians, the leaders, they all knew about him. They knew him. They recognized him also. But the common man, the common public, does not understand him or doesn't know him. They've never seen him, they've never heard about him. At the time, though Gandhi was a very popular person in South Africa, but in India he was practically a non-entity. कोई जानता नहीं था उन्हें यहाँ पर जब वो हिंदुस्तान वापस आए. तो वहाँ पे राजकुमार शुक्ला इतना तंग आ चुका था कि उसको लगा कि बस बहुत हो गया, मैं अब कितने लोगों से मिलूँगा. Finally, as call it destiny, call it fate, call it whatever you want, कि ये जो राजकुमार शुक्ला ने डिसाइड कर लिया, अब मैं ये जो गांधी आदमी है इसी से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा. आई विल नॉट गो टू मीट एनीवन. एंड वो गांधी से मिला. गांधी को उसने अपनी प्रॉब्लम बताई, और जब उन्होंने सुना तो गांधी ने कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि आई एम अ वेरी बिजी पर्सन, इस वक्त मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बट तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता. बट राजकुमार शुक्ला इज़ वेरी रेजोल्यूट. रेजोल्यूट मीन्स डिटर्मिन्ड. उसने अब सोच लिया कि मैं तो सिर्फ इसी से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा. तो वो गांधी को कहता है कि कोई बात नहीं, आप फ्री हो जाओ, फिर आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करना. अब so fine, Gandhi, but then Gandhi was too busy, and he had appointments in Kanpur, then he had to go to Ahmedabad, then he had to go on to that so-called Bharat Darshan जो गांधी ने किया उन दिनों में, just to get to know the pulse, to get the pulse of the Indian man, common person. तो राजकुमार शुक्ला उनके साथ ही रहा.
एंड गांधी बहुत इम्प्रेस हो गए उससे, उनको लगा कि कितना डिटर्मिन्ड बंदा है। ओके फाइन, ही सेड ऑल राइट, ही सेड लुक एट दिस पर्टिकुलर डेट आई विल कम टू कोलकाता, दैट इन दोज डेज इट वॉज कॉल्ड कलकत्ता, सो ही सेड आई विल कम टू कलकत्ता एट दिस ऑन दिस डेट एंड यू मीट मी देयर। सो ही सेड ओके, एंड जब गांधी कुछ महीनों के बाद कलकत्ता पहुंचे तो देयर ही वॉज सिटिंग देयर वेटिंग फॉर गांधी। गांधी ने सारा दिन अपना काम किया, मीटिंग्स वगैरह अटेंड की, और शाम को जब वो फ्री हो गए सो ही सेड ओके कम ऑन नाउ टेक मी वेरेवर यू वांट टू टेक मी, आई एम ऑल योर्स। उन लोगों ने ट्रेन पकड़ी और पटना आ गए। अब पटना में शुक्ला उन्हें एक लॉयर के घर लेकर गया। द नेम ऑफ द लॉयर वॉज राजेंद्र प्रसाद। ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो फ्री इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। इन दोज डेज राजेंद्र प्रसाद वॉज अ वेरी पॉपुलर एडवोकेट, अ लॉयर इन बिहार। और राजकुमार शुक्ला जो है उनका क्लाइंट था, तो वो उन्हें गांधी को अपने लॉयर से मिलाने के लिए लेकर गए। अब लॉयर से मिलाने तो ले गए, अब लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो घर पे नहीं थे। सो हिज सर्वेंट्स वर देयर एंड दे रिकॉग्नाइज शुक्ला। उनको लगा कि उनको पता था ये तो हर रोज़ हर दूसरे दिन आए रहता है कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर, तो उन्होंने उसे बाहर बिठा दिया। अब क्योंकि गांधी वॉज देयर विद हिम, सो दे थॉट ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ हिज नंबर्स, तो उन्हें भी उसके साथ ही बिठा दिया बाहर। अब यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है कि उस ज़माने में अनटचेबिलिटी बहुत प्रैक्टिस होती थी। It was a common norm and people would accept it as a routine thing. It was nothing new. It was nothing weird about it. क्योंकि लोगों की जो thought process है वो ऐसी ही थी. They would just accept it. It was an accepted norm. तो अब ये लोगों को लगा कि ये भी शायद एक लो कम्युनिटी का है, जैसे ये शुक्ला था, तो गांधी को भी बिठा दिया उसके साथ। अब सारा दिन वो बैठे रहे, राजेंद्र प्रसाद तो आए नहीं, तो गांधी ने उन्हें कहा कि हमें अपने कुएं से पानी तो लेने दो थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दो सर्वेंट्स दे रिफ्यूज देम इवन वाटर फ्रॉम देयर वेल। सो रीज़न क्या था? उन्होंने बोला कि तुम कुएं में बाल्टी डालोगे तो ऑब्वियसली जो बाल्टी में पानी होगा वो तुम्हारा हो जाएगा, और जब वो तुम्हारा हो जाएगा तो और उसको बाहर निकालते वक्त क्या होगा कि उस बाल्टी में से कुछ ड्रॉप्स तो कुएं में गिरेंगे, एंड जैसे ही वो, क्योंकि वो बाल्टी का पानी तुम्हारा है, तुम हो छोटी जाति के, और जब वो पानी उसमें गिरा तो जो पानी है वो कुआं जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते, हम तुम्हें अपने कुएं से पानी नहीं लेने देंगे। ठीक है, फिर गांधी ऑल्सो डिसाइडेड ओके फाइन नेवर माइंड। सो वहाँ से वो लोग आ गए मुजफ्फरपुर में डॉक्टर महात्मा गांधी हैं, उस वक्त महात्मा गांधी नहीं थे वो, गांधी के एक जान पहचान वाले थे प्रोफेसर कृपलानी, जो कि आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर थे। तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा, जिनको गांधी ना शायद शांति निकेतन में कभी मिले थे। तो उन्होंने वो जब गांधी वहाँ पहुँचे राजकुमार शुक्ला के साथ, दिस वॉज समवेयर इन द मिडनाइट ऑफ 15 अप्रैल 1917। कृपलानी अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने गांधी को रिसीव किया, एंड ही टुक देम टू द हाउस ऑफ प्रोफेसर मलकानी। प्रोफेसर मलकानी जो हैं वो एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे, एंड Gandhi made a very interesting comment over here where he says that it's very interesting to see that for a government professional from a government employee to give shelter to a man like me. मेरे जैसे आदमी को एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय शेल्टर दे रहा है, अपने घर में जगह दे रहा है। ये क्यों गांधी ने कमेंट किया? क्योंकि उस ज़माने में ना होम रूल बहुत पॉपुलर था। होम रूल का जो पॉलिसी था, होम रूल का मतलब क्या हुआ कि ये 1917 के टाइम पर
इंडियंस जो है ना, जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज थी, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ये लोग इंडिपेंडेंस की बात नहीं करते थे तब। ये लोग तब बात करते थे इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि ब्रिटिशर्स कहते थे इंडिया इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो वो कहते थे कि भी अगर हम इंटेग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर हैं तो वी शुड हैव प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब यहाँ तो जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो यहाँ से होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए, क्योंकि उसे तो इंडियंस की प्रॉब्लम्स का पता होगा ना, वो तभी जाके वो हमारे बारे में, हमारी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर रेज कर सकेगा पार्लियामेंट में। अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो और गांधी जो थे, ही वॉज अ वेरी आर्डेंट एडवोकेट ऑफ होम रूल। तो और उधर से आयरॉनिकली प्रोफेसर मलकानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो एक ऐसे आदमी को अपने घर में रख रहे हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ है, या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्वेश्चन कर रहा है। चलो हो गया। अब गांधी व्हेन ही रीच देयर, तो ग्रेजुअली हिज अराइवल इन मुजफ्फरपुर इट स्प्रेड टू चंपारण एंड अदर प्लेसेस, एंड फार्मर्स जो हैं वो उधर से दूर दूर से लोग गांधी को मिलने आए। जब उनको पता चला कि गांधी किस वजह से आए हैं, वजह हम डिस्कस करेंगे अभी, आई विल टेल यू इन डिटेल, बट देन लेट्स जस्ट मेक अ बैकग्राउंड फर्स्ट। सो सब लोग आए वहाँ पे, और मुजफ्फरपुर में जो लॉयर्स थे, दे ऑल केम टू कॉल ऑन गांधी, दे केम टू मीट हिम, एंड गांधी ने उनसे बातें की, उनसे पूछा, और उन दोज लॉयर्स दे सेड कि येस वी वेरी फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट दीज फार्मर्स इन द कोर्ट। लेकिन बेचारे दे आर सो पुअर दैट इनके तो हमारी फीस भी नहीं दे सकते हैं, और इसलिए इनके केसेस जो हैं वो लटक जाते हैं, बहुत लंबे लंबे चलते हैं। जब गांधी ने ये सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। ही स्कोल्डेड these lawyers, and he said that we should try to stop going to law courts. ये तो कोर्ट में जाकर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये डजंट हेल्प। जहाँ पर क्या होता है कि जो पेजेंट है, जो फार्मर है, वो तो ऑलरेडी दबा हुआ है, डरा हुआ है, और लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस ओवर हियर, क्योंकि वहाँ पर सारी प्रोसीडिंग्स इंग्लिश में होती हैं। किसान जो बेचारा अनपढ़ गरीब है और इग्नोरेंट है, उसे कुछ पता नहीं चलता है, और फिर बात वहीं की वहीं रह जाती है। जब हम इफ़ वी वांट टू गिव रिलीफ, if we want to help these farmers, so the best thing to do is to free them from fear. डर से आज़ाद कराने की ज़रूरत है पहले। एंड तो ये जब उन्होंने बात की, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, किस चीज़ के बारे में गांधी जो किस चीज़ का डर है या किस चीज़ का इशू है जो यहाँ पर रेज हो रहा है, वो ये है कि बहुत पुराने टाइम से ज़मींदारी सिस्टम चला आ रहा था। ज़मींदार जो है, जो लैंडलॉर्ड है, उसके पास बड़ी ज़मीन है, बहुत ज़मीन है, और इतनी ज़मीन है कि उसके अंडर जितनी ज़मीन आती है, जो शायद मे बी जनरेशंस ऑन एंड वो लैंड जो है वो लोग मालिक हैं उस ज़मीन के, जो कई गांव तक कवर करती है। और ये जो किसान है, द फार्मर्स दे डोंट ओन द लैंड, द फार्मर्स दे टेक द लैंड ऑन लीज, ऑन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम दी जमींदार, और उस पे खेती करते हैं, क्योंकि जमींदार खुद तो खेती करता नहीं है, खेती करते हैं किसान। और वो क्या करते हैं कि उस जो अनाज होता है उसका एक मेजर पार्ट जो है वो जमींदार को देता है एज हिज पेमेंट और हिज टैक्स और व्हाटएवर उसमें, और उसके बाद एक छोटा हिस्सा वो रखता है अगले साल को उगाने के लिए एज सीड, एंड कुछ हिस्सा वो रखता है अपने खुद के कंजम्पशन के लिए। और ये सदियों से, सेंचुरीज से चला आ रहा सिस्टम है। एंड इट वाज लाइक ओके, इन रिटर्न जो जमींदार है वो क्या कर रहा है, इन रिटर्न ही इज गिविंग प्रोटेक्शन टू द फार्मर्स, टू द विलेजेस। एक छोटी सी एक फौज है उसकी, कुछ लोग हैं जो उसके पास हैं, और उनके जो आपस के लड़ाई झगड़े जो हैं वो जमींदार के पास ही रिजॉल्व हो जाते हैं। तो आज तक कभी किसी ने कोर्ट कचहरी देखा ही नहीं है, किसी को पता भी नहीं है कि पुलिस स्टेशन क्या होता है। एंड सो ये सब जो था वो चला आ रहा था।
फार्मर्स भी खुश है, जमींदार भी खुश है और सब तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? प्रॉब्लम ये शुरू हुई कि देन केम दी ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स ने देखा, ब्रिटिशर्स जो हैं वो बेसिकली क्या हैं, वो हैं एक बिजनेस कम्युनिटी। तो उन्होंने जब देखा, उनको तो प्रॉफिट से मतलब है, सो उन्होंने जब देखा कि वाह क्या बात है यार, जमींदार तो बहुत ऐश से जिंदगी जीते हैं, दे लिव अ वेरी गुड लाइफ, सो we should also become like that, you know. So what did they do? They acquired land. उन्होंने ज़मीन खरीदी और वहाँ पर ज़मींदार बन गए। अब लेकिन अनाज की खेती से तो कोई प्रॉफिट नहीं है, तो उन्होंने सोचा एक प्रॉफिटेबल क्रॉप लगाना चाहिए, कैश क्रॉप उगाना चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और उस ज़माने में जो कैश क्रॉप था वो था इंडिगो। इंडिगो इज़ नील। नील, वो जो मम्मी कपड़े धोती है तो उजाला डालती है ना वाइट कपड़ों को सफ़ेद करने के लिए, दैट्स लिक्विड इंडिगो। तो ये सिंथेटिक इंडिगो है वो। लेकिन जो नेचुरल स्टेट में इंडिगो मिलता है, जो मार्केट में होता है, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव इसलिए होता है क्योंकि इंडिगो की जो खेती होती है ना, उसमें अगर आप किसी ज़मीन पे आप इंडिगो उगाते हो तो फसल पकने के बाद जब उसको काट लिया जाता है तो 3 साल के लिए ज़मीन को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो ज़मीन पॉइजनस हो जाती है एंड उसको 3 साल तक छोड़ना पड़ता है। फिर नेचर डज इट्स मैजिक एंड फिर जाके धीरे धीरे वो ज़मीन जो है वो खेती करने लायक बनती है। तो अब किसान को जो किसानों को इस ब्रिटिश ज़मींदारों ने कहा कि हम तुम्हें ज़मीन तो दे देंगे, लेकिन ज़मीन हम तब देंगे जब तुम नील की खेती करोगे, इंडिगो की खेती करोगे। अब किसान के लिए तो प्रॉब्लम है, वो सोचता है कि हम नील की खेती तो कर लें, लेकिन अगले साल फिर हम क्या करेंगे? अगले साल नील थोड़ी ना खा सकते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर ब्रिटिशर्स को लगा कि ये तो काम नहीं बनेगा, तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि जो भी किसान हमसे ज़मीन लेगा उस ज़मीन के 15% हिस्से पर वो नील की खेती करेगा, बाकी ज़मीन पे वो अपना अनाज उगा ले। लेकिन इंडिगो की खेती में जो प्रॉफिट होगा वो 100% प्रॉफिट जो है वो ज़मींदार का होगा, किसान को कुछ नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो अनाज वो उगाएगा, उसका अनाज का जो जैसे नॉर्मल पहले जो 3 हिस्से होते थे वही होंगे एंड अकॉर्डिंगली वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो अब किसानों को ये बात पसंद तो नहीं आई, बट दे हैड नो अदर ऑप्शन, तो उन्होंने मान लिया एंड चलो अब बड़ा उनको उसमें प्रॉफिट होने लग गया। व्हेन द इंडियन जमींदार सॉ दिस सिस्टम दे रियलाइज्ड कि वाह दिस इज गुड, ये तो बड़े फायदे की चीज़ है। हिंदुस्तानी जमींदारों ने भी यही करना शुरू कर दिया। अब बेचारे किसान परेशान है लेकिन कुछ कर तो सकते नहीं। एंड फिर देन केम अ ट्विस्ट इन द स्टोरी। ट्विस्ट ये आया कि यूरोप में आ गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो का प्रोडक्शन हो गया। अब सिंथेटिक इंडिगो जो है वो बल्क में प्रोड्यूस हो रहा है और केमिकल से बना है और सस्ता भी है। और वेरास ऑन द अदर हैंड जो नेचुरल इंडिगो है वो महंगा बिकता है और ख़रीदने वाले कम होते हैं और लो उसकी लाइक क्वांटिटी रहती है, कम क्वांटिटी में होता है वो। तो जब सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हुआ तो सबसे पहले वो इंडियन मार्केट में आया। यूरोपियंस के लिए ना इंडियन मार्केट वाज द फर्स्ट प्लेस वेयर एनीथिंग इन बल्क वाज डम्प्ड, क्योंकि यहाँ पर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा थी। अगर यहाँ कोई चीज़ चल गई फिर वो दुनिया के किसी भी हिस्से में चल जाएगी। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मार्केट्स दैट द यूरोपियंस हैड। तो ये जब सिंथेटिक इंडिगो मार्केट में आया तो ऑब्वियसली काम तो वो नेशनल इंडिगो वाला ही करता है। तो लोगों ने सोचा सस्ता, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है यार, अब आप और मैं भी अगर जाएंगे तो हम वही चीज़ खरीदेंगे ना जो कम कॉस्ट में है, लेकिन उसका फ़ायदे तो वही है जो नेचुरल चीज़ दे रही है। तो वो लोगों ने सिंथेटिक इंडिगो खरीदना शुरू किया और नेचुरल इंडिगो के गोडाउन्स जो हैं वो भरे के भरे रह गए।
अब बेचारे ज़मींदार परेशान हैं कि क्या करें, हम कैसे अपने प्रोडक्ट को बेचें। फिर उनको लगा कि ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कोई खरीद ही नहीं रहा है। फिर देन दे केम अपॉन एन आइडिया, जो ब्रिटिश ज़मींदार थे, दे केम अपॉन आइडिया, दे थॉट चलो ऐसे करते हैं, किसान तो बेवकूफ़ हैं, इन्हें तो पता कुछ नहीं, तो हम इनको ना चालाकी से इनसे पैसे निकलवा लेते हैं। तो उन्हें तो अपना मतलब था, तो उन्होंने उन्हें कहा कि देखो हमें पता है तुम्हें बड़ा प्रॉब्लम है, यू डोंट लाइक दिस सिस्टम ऑफ 15% ऑफ प्रॉफिट दैट लाइक ऑफ द लैंड विच गोज फॉर इंडिगो प्रोडक्शन। तो अगर तुम इससे आज़ाद होना चाहते हो तो हमें इस इंडिगो से जो प्रॉफिट होने वाला था मार्केट में उतना हमें कॉम्पनसेशन दे दो और फिर तुम पूरी ज़मीन पे अनाज उगा लो, फिर हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। तो कुछ किसानों ने तो कर लिया, मतलब अब पैसे तो कहाँ किसी के पास होते हैं, किसी ने मनी लेंडर से पैसे लिए, साहूकार से पैसे लिए, उधार पे लिए, जो भी किया उसने, एंड वो उन्होंने अपने आप को कर लिया आज़ाद। अब लेकिन कुछ किसान जो है वो ये सोचते हैं कि हम साहूकार से पैसे क्यों लें, हम और उल्टा और कर्जे में दब जाएंगे, तो वैसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो दे रिफ्यूज, दे सेड नहीं, हम जो चल रहा है वो वैसे चलेगा, वी डोंट वांट टू चेंज द सिस्टम। जमींदार को प्रॉब्लम है, उसको लग रहा है कि मेरे तो पैसे जा रहे हैं, माई मनी इज बीइंग लॉस्ट ओवर हियर। तो उन्होंने ज़बरदस्ती अपने आदमी भेजकर लोगों से साइन करवाने शुरू कर दिए। जब ये बात होनी शुरू हुई, आए दिन कोई ना कोई झगड़ा हो जाता, आए दिन कोई ना कोई लड़ाई हो जाती, कोई किसान जो है उसकी मार पिटाई होती, बेचारे बड़े परेशान हो गए। और इसी परेशानी को लेकर राजकुमार शुक्ला लखनऊ आया, क्योंकि अब सोचो जो एक अनपढ़ इंसान किसान अगर लखनऊ तक, एक बड़े शहर तक आया लीडर्स से, पॉलिटिशियन से बात करने के लिए, तो अब सोच सकते हैं कि वो कितना परेशान रहा होगा। How troubled he must have been with this whole thing that he decided to call it, like, make sure that things are sorted out forever now. So it was like a do or die kind of a situation. So ये सिनेरियो था जब गांधी इस पूरे सीन में आए, और जब वो यहाँ पहुँचे तो गांधी ने सबसे पहले चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो त्रिहु डिवीज़न है उनके ब्रिटिश कमिश्नर जो है उनको मिले। तो ब्रिटिश कमिश्नर को उन्होंने कहा, उसके पहले वो एक लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी को जाके मिले। तो ब्रिटिश का लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने गांधी को वहाँ से भगा दिया, ये कह के कि हम आउटसाइडर्स को, वी डोंट गिव इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स। नाउ आयरनी ये है कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का सेक्रेटरी है वो एक आउटसाइडर है, ही इज़ अ फॉरेनर, गांधी इज़ एन इंडियन, एंड ही इज़ टेलिंग गांधी कि हम बाहर के लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं देते। चलो, गांधी वेंट टू द ब्रिटिश कमिश्नर देन ऑफ द त्रिहुट डिवीजन और उसको भी ऐसे बोला, एंड उधर से कमिश्नर ने क्या किया, ही बुलीड गांधी एंड ही सेड कि तुम ये जगह छोड़ के चले जाओ, go away from here, don't come, because see these people, they had not actually ever, अभी तक हिंदुस्तान में किसी ने गांधी को इन एक्शन नहीं देखा है, कोई नहीं जानता था कि गांधी क्या चीज़ है। जो साउथ अफ्रीका में उसने जो किया, they never thought anybody could do it in India also, so they are kind of treating him like that, but Gandhi did not leave। वो वहाँ से he went to a place called मोतीहारी which was the capital of चंपारण। वहाँ गए तो बहुत सारे जो लॉयर्स हैं उन्होंने उनके साथ में आए और बड़े लोग गांधी को मिलने के लिए आए। गांधी एक घर में जाकर किसी किसान के घर में रहने लग गए, वहाँ उन्होंने अपना हेडक्वार्टर्स बनाया, अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और फिर एक दिन पता चला कि किसी एक किसान की थोड़ी मार पिटाई हुई होगी, तो गांधी उसको देखने के लिए चले गए। जब वो जा रहे थे, अब सोचो इतना बैकवर्ड एरिया है कि सड़क भी नहीं है, रास्ते भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं जाती है, बैलगाड़ी भी नहीं जाती है, कुछ नहीं। गांधी वहाँ पर हाथी के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। एंड जब वो वहाँ जा रहे थे तो पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर उनको मिला और उसने रोका और उसने कहा कि ही हैज़ अ मैसेज फॉर गांधी एंड ही सेड यू हैव टू कम बैक होम, ओनली देन आई कैन डिलीवर द मैसेज। सो फाइन, गांधी इज़ अ लॉ अबाइडिंग पर्सन। वो वापस आ गए, उन्होंने कहा ठीक है। उसने मैसेज दिया और मैसेज जो था दैट वाज इट वाज एन ऑफिशियल नोटिस टू गांधी टू क्विट चंपारण, कि अभी के अभी जग चंपारण छोड़कर चले जाओ।
ओके, गांधी साइन द रिसिट फॉर द नोटिस एंड उसी के पीछे उन्होंने लिखा कि आई एम सॉरी, आई विल नॉट लीव। मतलब बड़े पोलाइटली। अब ये सोचो, आप इमेजिन करो ये चीज़ कि गवर्नमेंट जो है एक बंदे को कह रही है, आज तक अंग्रेज गवर्नमेंट को के आगे किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने आंख नहीं दिखाई उनको, और वो एक बंदे को बुली कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम चलो यहाँ से निकलो, क्योंकि उनको है कि ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा लोगों के लिए। और गांधी बड़े प्यार से, बहुत रिस्पेक्टफुली वो कह रहे हैं कि नो, आई विल नॉट गो, कर लो जो करना है। एंड इन कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, गांधी को अगले दिन उन्होंने कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन्स दे दिए। गवर्नमेंट केस कर चुकी थी गांधी के ऊपर। अब सारी रात गांधी जागे, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को टेलीग्राम्स भेजकर बुलाया, जो फ्रेंड्स मतलब जो लॉयर्स थे वहाँ के। राजेंद्र प्रसाद भी आए अपने काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ, और गांधी ने अपने सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह अपने आश्रम तक भेज दी, वायसरॉय को फुल रिपोर्ट भेजी। और सुबह मोतीहारी जो शहर है वो किसानों से भरा हुआ था। रातों रात किसी ने गांधी के ट्रैक रिकॉर्ड को नहीं जाना, कोई नहीं जानता था। वहाँ के जो लोग हैं वो नहीं जानते थे कि वो साउथ अफ्रीका में क्या करते थे। बस उन्हें इतना मालूम था कि एक महात्मा है। महात्मा अब तक गांधी की मतलब एक, क्योंकि वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं तो लोगों ने उसे महात्मा बोलना शुरू कर दिया कि एक महात्मा है जो हमारे को हेल्प करना चाहता है और अथॉरिटीज उसको तंग कर रही हैं। एंड दिस वाज अ स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, यू नो, nobody asked them, nobody told them, nobody forced them, but in thousands people they converged onto the courthouse। और ये पहला स्टेप था of the liberation of the people from the fear of the British। अंग्रेजों से डर से ये पहला कदम था उसकी आज़ादी का। और फिर जो ऑफिशियल से बेचारे बड़े घबरा गए, उनको लगा कि क्या करें। उन्होंने आयरॉनिकली गांधी को ही कह रहे हैं कि यू प्लीज हेल्प अस रेगुलेट द क्राउड। गांधी वाज ओके, ही वाज लाइक वाज वेरी पोलाइट, वेरी फ्रेंडली, एंड ही और उन्होंने लोगों को कहा कि आप लोग शांत रहिए, कुछ नहीं करेंगे, जो भी होगा बस देखते जाइए। एंड दिस वाज लाइक, यू नो, ही वाज काइंड ऑफ नॉट giving any proofs to the authorities, he was actually giving proof to the people कि देखो आज तक अंग्रेज गवर्नमेंट अनक्वेश्चन रही है, अनचैलेंज रही है और लोग उनसे डरते रहे हैं। लेकिन ये पहली बार है कि अगर हिंदुस्तानी उसको चैलेंज करेंगे उनको, तो अंग्रेज गवर्नमेंट का क्या हाल होता है। लोग कितना डरे हुए थे। गवर्नमेंट बड़ी कंफ्यूज हो गई। प्रोसिक्यूटर ने रिक्वेस्ट किया कि ट्रायल को पोस्टपोन करो, अब क्योंकि दे सेड कि हम अलेजेडली अपने अथॉरिटीज से बात करना चाहते हैं। गांधी रिफ्यूज्ड। ही सेड, हाँ, गांधी इज ऑल्सो अ लॉयर, सो ही प्रोटेस्टेड। ही सेड, यू कॉल्ड मी हियर, व्हाई वुड यू वांट टू डिले इट नाउ। और वहां गांधी ने एक स्टेटमेंट पढ़ा एंड ही सेड, आई एम गिल्टी, मैं गलत हूं, मैंने गलती की है, सजा दो मुझे। He says, I am involved in a conflict of duties। ये ध्यान से इसको समझें। Conflict of duties क्या है? He says, on the one hand, he says, my duty is not to set a bad example as a law breaker। कहता मैं एक लॉयर हूँ, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं लोगों को सिखाऊं कि लॉ फॉलो करना चाहिए, ठीक है। पर अगर मैं और दूसरा हाथ पे मेरा ये भी फ़र्ज़ है कि मैं इंसान होने के नाते नेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने ही लोगों की हेल्प करके। अब अगर मैं लॉ को अपहोल्ड करता हूँ और लॉ ब्रेक नहीं करता हूँ, तो मैं जो अपना ह्यूमैनिटेरियन सर्विस में दे रहा हूँ लोगों को, इंसानियत के नाते इन लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पाऊँगा। और अगर मैं इन लोगों की हेल्प करता हूँ तो क्या होगा कि मैं लॉ ब्रेक करूँगा। तो दोनों में से कोई भी एक इशू जब फुलफिल होगा तो दूसरा अपने आप ही टूटेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी हो गया। He says, I have to answer. See, it's not that I don't respect the law, but he says if I obey the law, then I will not be obeying the higher law, that is the voice of my conscience। So इसलिए आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दे दो।
मैजिस्ट्रेट बेचारा बड़ा परेशान हो गए। उनको लगा कि ये क्या है, मतलब पहली बार कोई आदमी आया और जो कह रहा है मुझे सजा दो, मैं गलत हूँ। एंड उन्होंने कहा 2 आवर की रिसेस, वी वांट टू कंसल्ट। और गांधी को बोला कि 120 मिनट्स दैट इज 2 आवर्स के लिए बेल फर्निश कर दो, लाइक सिक्योरिटी जमा करा दो। गांधी रिफ्यूज, ही सेड मैं तो नहीं करूँगा, ठीक है, एंड मैं क्यों करूँ, देखा जाए तो ही सेड यू कॉल्ड मी हियर, आई एम हियर, मैं कहीं भाग के तो जा नहीं रहा और मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। और अगर केस को पोस्टपोन करना चाहते हो तो ये प्रॉब्लम आपकी है, मेरी थोड़ी ना है। Why should I give you security? Why should I pay the bail over here? I will not do that. जब उन्होंने ये रिफ्यूज कर दिया तो जजेस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उन्होंने गांधी को बोला कि अच्छा ठीक है, जाओ मत पैसे दो। फिर 2 घंटे के बाद जब कोर्ट रिकन्वेन हुआ तो जजेस ने बोला कि हम आज अपना जजमेंट नहीं देंगे, हम कुछ दिनों के बाद देंगे, एंड गांधी इज फ्री to go from here, but he cannot leave this place and go away. गांधी चाहते क्या थे, यही कि यहाँ से नहीं जाना है मेरे को, and that was it. So फिर ये सारे जो लॉयर्स हैं, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक, या और बड़े बड़े और प्रोमिनेंट लॉयर्स जो बिहार से आए थे, और गांधी से उन्होंने कंसल्टेशन भी की, सब कुछ। एंड तो गांधी ने उन्हें कहा कि अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो तुम लोग क्या करोगे। तो वो कहते हैं कि हम तो आपकी हेल्प करने आए हैं, अगर आप जेल चले जाओगे तो हम वापस चले जाएंगे, हमारा क्या काम। तो गांधी ने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, तो सेज देन व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयरक्रॉपर्स ऑफ द फार्मर्स, व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू देम, हाउ विल दीज पीपल बी गिवन जस्टिस। So when the lawyers they all sat together, they discussed it. राजेंद्र प्रसाद ने रिकॉर्ड किया है, नोट किया है इस पूरे कंसल्टेशन को, एंड ही सेड कि गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, बाहर से आए थे, एंड येट ही वॉज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द फार्मर्स। और हम लोग कहते हैं ऑन द अदर हैंड, हम यहाँ के रहने वाले ही नहीं है सिर्फ, हम ये भी कहते हैं कि हम इनको सर्व करते हैं, हम इन लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पर हैं, और हम घर चले जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। एंड सो दे गो बैक टू गांधी एंड दे से कि ठीक है, अगर आप जेल जाओगे तो हम भी जेल जाएंगे, वी विल ऑल्सो फॉलो यू टू जेल। एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन गांधी एक्सक्लेम्ड एंड ही सेड देन The battle of Champaran is won. That means कहते हैं कि that means किसान जो हैं वो अकेले नहीं हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, तुम अगर मेरे साथ दोगे तो फिर हम जीत ही जाएंगे। और तब गांधी ने एक पेपर पे लिया और सबके नाम नोट किए और सबको पेयर्स में डिवाइड किया। प्लान ये था कि गांधी जब अरेस्ट हो जाएंगे, ऑब्वियसली अरेस्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि ये जो अंग्रेज है ना, इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जस्टिस डिस्पेंस करने का तरीका था। ये क्या करते थे कि पहले सजा डिसाइड करते थे, फिर इल्जाम ढूंढते थे, और फिर वो बंदे को पकड़ के लाते थे जिसको उन्होंने जेल में डालना है। मतलब पहले वो बंदे को पकड़ने से पहले ही वो डिसीजन हो चुका है कि भाई इसको हमने इतने टाइम के लिए जेल में डालना है, अब इसके लिए कोई सजा ढूंढो। मतलब इट्स समथिंग लाइक कि भाई एग्जामिनेशन होने से पहले ही रिजल्ट बना के रख लो, और फिर जब बच्चे ने पेपर दिया तो उसमें अकॉर्डिंगली मार्क्स एडजस्ट कर दिए। सो अब ये गांधी को मालूम था। अब इनका प्लान ये था कि जब गांधी अरेस्ट हो जाएंगे तो हर 2 घंटे में 2 लोग जाएंगे पुलिस स्टेशन और अपने आप को अरेस्ट करा देंगे। अब हर 2 घंटे में अगर कोई, आप सोचो, बिना किसी सजा के, बिना किसी गलती के हर दो आदमी जाए और कहे जी मुझे अरेस्ट करो, मैं गांधी का साथ दे रहा हूँ, मुझे अरेस्ट करो, मैं गांधी का साथ दे रहा हूँ, मैं किसानों का साथ दे रहा हूँ। अब कितने लोगों को वो जेल में डालेंगे। ऐसा हुआ ना, होता था ऐसे। एंड ये सोच कर, मतलब ये प्लान था, ये दिस वाज द सत्याग्रह, सत्याग्रह का जो आंदोलन है वो यहाँ से शुरू हुआ। नॉन कोऑपरेशन का जो मूवमेंट है वो यहाँ से, ये इस पॉइंट से शुरू हुआ। सिविल डिसोबीडियंस, नॉट टू ओबे द लॉ, यहाँ से शुरू हुआ। ये जो बड़े बड़े मूवमेंट्स हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रहे हैं वो इस छोटी सी सिचुएशन से शुरू हुए हैं। दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट। आप मतलब पिन पॉइंट कर सकते हैं कि यहां से ये बात शुरू हुई है।
एक छोटा सा इंसिडेंट था कि भाई किसानों को लाइक एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। एंड चलो एनीवे, फिर बहुत दिनों के बाद गांधी को एक लेटर मिला, मैजिस्ट्रेट ने इन्फॉर्म किया कि भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनका केस ड्रॉप करा दिया है एंड सिविल डिसोबीडियंस की जीत हो गई। एंड गांधी और उनके लॉयर्स ने तब पूरा जी जोर शोर से दे स्टार्टेड ऑफ कलेक्टिंग एविडेंसेस, ढेर एविडेंसेस इकट्ठे किए गए। एंड फिर गांधी वॉज invited by Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor, to meet him। और गांधी को लगा कि ये फिर मुझे अरेस्ट ना कर लें, तो उन्होंने अपना पूरा ये सारा प्लान वगैरह सो बना के रखा। देयर गांधी वेंट एंड 2-3 विजिट्स मीटिंग्स हुई उनकी। एंड उसके बाद में इट वॉज डिसाइडेड कि एन ऑफिशियल इंक्वायरी शुड बी कंडक्टेड और एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसमें ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे लॉयर्स, एक जो जमींदार हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके लॉयर, और फार्मर्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो थे गांधी। और पूरा साल भर लगा ये पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने में। एंड फिर जब साल के बाद जब ये सब कुछ हो गया, तो ये नतीजा निकला, ये कंक्लूजन निकला इस पूरी कमीशन की इंक्वायरी का कि जमींदार गलत है। और ये बात फैल गई लोगों में कि अब तो कॉम्पनसेशन मिलेगा, पैसे मिलेंगे हमको, क्योंकि हमारे को एक्सप्लॉइट किया, हमारे साथ इन्होंने धोखा किया। तो जब उन्होंने पूछा भी कितना पे करें, तो गांधी ने बोला कि मेरे को फुल पेमेंट हमको नहीं चाहिए, कहते हैं हमें 50% पे कर दो कंपनसेशन। बिकॉज गांधी को तो मालूम था कि भाई पूरा कहाँ देंगे, जमींदार मतलब वो लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी जिंदगी में एक पैसा नहीं किसी को दिया, और वो पूरा 100% कंपनसेशन देंगे, हो ही नहीं सकता। सो चलो इसे 50% दे दो। अब लेकिन जो जमींदारों के जो लॉयर्स हैं वो बड़े स्मार्ट थे, उनको मालूम था कि अगर हम इस बात को लटका देंगे ना, तो क्या होगा कि केस कुछ सालों के बाद खत्म हो जाएगा, बिकॉज नोबडी विल बी इंटरेस्टेड इन दिस। सो दे सेड कि नहीं, हम 50% नहीं दे सकते, हम तो 25% ही दे सकते हैं रिफंड। अब दे वर वेरी श्योर कि गांधी विल नेवर अग्री टू 25%। मतलब आप मान लो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 1 रुपए में से 25 पैसे वो कह रहे हैं कि हम आपको देंगे। तो दे थॉट कि गांधी विल नेवर अग्री, बट गांधी इमीडिएटली विदाउट अ थॉट ही एग्रीड। ही सेड ओके फाइन डन, सिर्फ 25% दे दो। एंड अब उन बेचारों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, दे हैड टू अग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25%। लोगों ने बड़ा गांधी से पूछा कि आपने क्यों माना, हमें 100% मिल जाता, ये वो। सो गांधी सेड कि लुक, आवर एम वॉज नॉट कॉम्पनसेशन, आवर एम वॉज टू मेक द जमींदार्स अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट अबव द लॉ, कि उनके ऊपर भी कानून है। और और दूसरा मेरा पॉइंट ये था कि पेजेंट्स को, फार्मर्स को ये समझाना कि तुम्हारे भी हक हैं, तुम्हारे भी राइट्स हैं, अपनी राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। एंड इस सिचुएशन में किसान ने करेज सीखा, हाउ टू फेस द सिचुएशन। सो ग्रेजुअली क्या हुआ कि अंग्रेजों को, जो अंग्रेज जमींदार थे, उनको समझ में आ गया कि भाई यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला। वो अपनी जमीनें छोड़ छाड़ के चले गए वापस इंग्लैंड, और एंड द फार्मर्स, द लैंड वाज रिवर्टेड बैक टू द फार्मर्स, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग टोटली हिंदुस्तान से खत्म हो गई। अब गांधी का जो एजेंडा था, आप ये सोचो, was never a political agenda. Gandhi was not a politician, like हमें लगता है, but then he was not a politician. He was a social reformer. और उनके जो मतलब उनके जो solutions होते थे ना, वो बड़े practical day to day life के साथ relate करते थे। उन्होंने देखा कि चंपारण में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, गरीबी है। गरीबी की वजह है एजुकेशन, कि people are not educated, they are backward. सो उन्होंने वहाँ स्कूल्स खुलवाए,
उनके जो डिसाइपल्स है जैसे महादेव देसाई, नरहरि पारिक जैसे जो उनके फॉलोअर्स है, वो बॉम्बे, पूना से जगह जगह से लोग आ गए और उन्होंने वॉलंटियर किया कि भी हम यहाँ पर पढ़ाएंगे लोगों को। गांधी के जो यंगेस्ट सन देवदास वो भी पहुँच गए, मिसेस गांधी, मिसेस कस्तूरबा गांधी जो थी वो भी आ गई, एंड प्राइमरी स्कूल्स खोल लिए गए और जहाँ वो पढ़ाती थी और लोगों को पढ़ाते थे लोग। पढ़ाना तो चलो हो गया, अब वहाँ पर एक और चीज़ ज़रूरी थी, हेल्थ एंड सैनिटेशन। क्योंकि एक तो चलो एजुकेशन तो हो गई, लेकिन अगर आसपास गंदगी हो गई तो दिमाग भी तो उतना गंदा होगा। तो गांधी ने वहाँ पे डॉक्टर्स को वॉलंटियर करवाया 6-6 महीने की सर्विस के लिए और उनको बुला के आके लोगों को देखो। अब दवाइयाँ वहाँ कोई थी नहीं, सिर्फ 3 दवाई, 3 चीज़ें अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट। सिर्फ यही 3 चीज़ें अवेलेबल थी और इन्हीं तीनों का मिक्स एंड मैच करके वो कोई हर बीमारी का इलाज कर रहे थे। तो गांधी ने देखा कि वहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा क्लीनिनेस, हाइजीन को फॉलो नहीं करते हैं, रोज़ नहाते धोते नहीं हैं। तो उन्होंने ऐसे, और दूसरा जो ऐसे विमेन है, यू नो लाइक दिस इट इज सेड दैट इफ द वुमन ऑफ द हाउस इज क्लीन एंड टाइडी, हर हाउस विल बी क्लीन एंड टाइडी, हर थॉट्स विल बी positive and so will be the thoughts of the family. So he noticed that the women, they don't wear clean clothes, so he asked his wife to talk to them. So one woman took कस्तूरबा into her hut, उनको अपने झोंपड़े में ले गई और उसको कहा कि देखो, ना तो यहाँ बक्सा है, ना अलमारी है, ना कपड़े हैं, जो साड़ी मैंने पहना है बस यही है मेरे पास, अब मैं क्या करूँ। So गांधी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने वहाँ पे खादी का खुद कपड़ा बनाने का जो है वो शुरू किया। सो यू कैन ये अज्यूम सेफली कि खादी का जो शुरुआत है वो भी यहीं से हुआ। अब चंपारण एपिसोड कहते हैं कि वी वॉज द टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। क्यों? क्योंकि इसके पहले, इस चंपारण एपिसोड के पहले, गांधी वॉज मोहनदास करमचंद गांधी, बैरिस्टर एट लॉ, you know, recently educated from England. But after this Champaran episode, he became Mahatma Gandhi, the defender and the protector of the masses. And he very categorically declared in his own very style that the British cannot order me in my own country. He says, मेरा घर है, मेरे घर में बाहर वाला आके मेरे ऊपर हुक्म नहीं चलाएगा। ये जो चंपारण इंसिडेंट है, ये डिफायंस नहीं था। It didn't start as a revolution. It started just as an attempt to help the poor farmers, and it just graduated into a national issue. And धीरे धीरे ये इस पूरे सिस्टम को, जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सत्याग्रह, ये सब चीज़ें जो हैं ये इनकॉर्पोरेट हो गई नेशनल स्ट्रगल में। यहाँ एक और इंसिडेंट आता है जहाँ पे वो कहते हैं कि इस दौरान जब ये चंपारण का इंसिडेंट चल रहा था तो चार्ल्स फ्रियर एंड्रूस एक इंग्लिश पैसिफिस्ट प्रीस्ट थे जो गांधी के साथ साउथ अफ्रीका से आए थे। ही वॉज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ गांधी। तो वो जब गांधी को मिलने आए, क्योंकि ही वॉज लीविंग फॉर फिजी आइलैंड्स, तो गांधी के फ्रेंड्स ने उन्हें कहा कि आप तो अंग्रेज हो, आप अंग्रेजों से हमारे बारे में बात करो तो वो आपकी बात ज़्यादा सुनेंगे। He said, yeah, sure, I can talk to the officials regarding this, but the fact is, you must ask Gandhi first. गांधी अगर कह देगा कि हाँ मैं बात कर सकता हूँ तो मैं कर लूँगा, but गांधी was totally against it. He said no. He says, इस लड़ाई में हम एक बाहर वाले की हेल्प नहीं ले सकते, चाहे वो कितना भी हमारा क्लोज क्यों ना हो। कहते वो अंग्रेज क्या सोचेंगे, हम अपनी लड़ाइयाँ खुद भी नहीं लड़ सकते तो फिर हम और क्या कर सकते हैं। So he says हम अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकते। So Rajendra Prasad says that Gandhi had read the minds of the people very, very correctly, and he says he taught us a lesson in self-reliance. And this, he says, the self-reliance, Indian independence, and help to the sharecroppers were all intertwined together. So आपने देखा हाउ एक छोटी सी एक छोटा सा इंसिडेंट, बहुत इनसिग्निफिकेंट सा इंसिडेंट एक नेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया और वो कैसे चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गई। दैट्स व्हाट हिस्ट्री इज ऑल अबाउट।
It connects your yesterdays with your today and your coming future, your tomorrows. So जो चीज़ें कल हुई थी वो अगर आज हम उनको सही कर लेते हैं तो हमारा जो आने वाला कल है वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि वो आने वाला कल हमारे आज के एक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट है. So that's exactly what Gandhi wanted to teach us. So that's about it. This is the story of Indigo. So thank you very much for your patient listening. I hope everybody has got an idea now what this chapter is all about. So we'll meet next time with another story. Thank you and have a wonderful day.